بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: اطاعت کے اثرات۔ حضور والا، ہم نے اللہ کی، پیغمبر کی، صاحبان امر کی اطاعت پر گفتگو کی ہے اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو اور غور و فکر کیا ہو تو جب تک ہم اللہ کے اطاعت گزار نہیں بن جاتے تب تک ہم واقعی مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے پہلی کنڈیشن جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس کے اثرات، اس کی خوبیاں، اچھائیاں، یہ ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر، ہماری حیات کے اوپر، ہماری ممات کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ کیونکہ اگر ہمارے پیش نظر خدا رہا تو زندگانی کا ہر موڑ پر جب خدا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں احساس یہ دلاتا رہے گا کہ اے حضرت انسان، خبردار، ہوشیار، دیکھو ہر جگہ خدا موجود ہے، لہذا کسی غلط کام کرنے کی کوشش اور ہمت نہ کرنا۔ اب جب ایسی خوبیاں ہمارے وجود میں ضم ہو جائیں گے، ہمارے وجود میں پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے اثرات کے اوپر، ہماری روزمرہ کی زندگانی کے اوپر، ہمارے رہن سہن کے اوپر، سوسائٹی اور سماج میں، معاشرے میں، چاہے ہم انفرادی طور پر زندگی بسر کریں یا اجتماعی طور پر، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کریں گے اور ایک دوسرے کی نوعیت اور کنڈیشن کو بھی پہچانیں گے۔ کیونکہ جب ہم سماج کے حقوق کی رعایت کریں گے تو سماج کو جس نظریے سے ہم دیکھیں گے، اگر ہمارا پرسنل نظریہ ہے، دیدگاہ ہے، تو سماج کچھ اور نظر آئے گا، لیکن اگر ہمارا نظریہ ایک اسلامک نظریہ ہوگا تو پھر یعنی جو ہماری دیدگاہ ہوگی وہ اسلامی دیدگاہ ہوگی، کیونکہ ہم جس سماج کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سماج اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ دین کی آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دین نے بہت سارے حقوق، بہت سارے حق الناس اور بہت ساری ذمہ داریوں کو اللہ نے ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈال رکھا ہے اور ڈالتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے کاندھوں پر دین کی ذمہ داریوں کے بار کو محسوس کرنے لگیں گے
तो जाहिर सी बात है हमारे वजूद में जो हमारा विजदान है, हमारी ज़मीर है, ये हमें बार बार टोका देता रहेगा और यही एहसास दिलाता रहेगा कि ऐ हज़रत इंसान, तुम्हारे ऊपर सिर्फ घरेलू वाजिबात नहीं है, घरेलू जिंदगियां नहीं है, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे तुम्हारी सोशल लाइफ है, सामाजिक लाइफ है, माशरे की लाइफ है, और एक दूसरे के हुकूक तुम्हारी गर्दनों के ऊपर पाए जाते हैं। तो जब ऐसी दीदगाह पैदा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे वो एहसासात जो हमारे अंदर अभी इंक्रीज नहीं किए थे, वो एहसासात जो अभी हमारे अंदर वजूद में पैदा नहीं हुए थे, वो हमें धीरे धीरे करके एहसास दिलाते भी रहेंगे और एहसास पैदा भी होता जाएगा। अब जब एहसास पैदा होता जाएगा तो फिर हमारी दीदगाह, जो दीन की दीदगाह बनी हुई थी, वो चीजें हमारी नजरों में क्या होती जाएगी, आती जाएगी। और जब वो चीजें आती जाएगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी दीदगाह कोई पर्सनल नहीं है, फर्दी नहीं है, हमारी दीदगाह एक दीनी है, हमारी दीदगाह एक मजहबी है। तो जब दीदगाह मजहबी और दीनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पेश नजर खुदा रहेगा। और जब हमारे पेश नजर खुदा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जब खुदा हमारे पेश नजर होगा तो फिर हम उन सारी चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करने लगेंगे कि जहां पर खुदा हमें सोचवाना चाहता है। ऐ हजरत इंसान जरा सा गौर करो, ऐ हजरत इंसान जरा सा फिक्र करो, ऐ हजरत इंसान जरा सा तदब्बुर करो, जरा सा तअक्कुल करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी गर्दनों के ऊपर इताते खुदा का जो एहसास और बार है ये मौजूद है, जिम्मेदारी जो है वो मौजूद है। अब जब तुम अल्लाह की इताअत करने के लिए तैयार हो जाओगे, आमादा हो जाओगे, रेडी हो जाओगे, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अब जो खुदा कहता जा रहा है उसको तुम बजा लाओ। खुदा ने सबसे पहली कंडीशन पर हमसे सवाल क्या किया, हमसे मांगा क्या, हमारे ऊपर हुकूक कौन से मुरत्तब किए, हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारियों को रखा, हमारे ऊपर कौन सी सारी चीजों को उसने मुस्बत अंदाज में डाला, ताकि हम जब इस मुस्बत अंदाज को अगर गौर व फिक्र करेंगे और मुलाहिजा करेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये मुस्बत अंदाज हमारे दीनी भाइयों की बनिस्बत जब हम सोचना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसा हम सोचेंगे वैसे ही सामने वाला भी मेरे बारे में वैसे ही सोचेगा। क्यों? इसलिए कि अगर हम किसी के बारे में ख्यालात अच्छे रखते हैं तो सामने वाले का ख्यालात भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम किसी से बदगुमानी रखते हैं तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी हमारे लिए बदगुमानी रखेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अहादीस मासूमीन ने जो चीजें हमें दी हैं, जो चीजें हमें बतलाई हैं, वो यही कि मौला से सवाल किया गया, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, कि मौला मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले से जितनी मोहब्बत मैं करता हूं उतनी मोहब्बत वो भी करता है। इमाम ने एक बेहतरीन जवाब जो दिया है ये हर एक के लिए है। आज बहुत सारे अफराद जो पसमानदगी और एहसास कमतरी का जो शिकार हो रहे हैं वो यही कि साहब सामने वाले के लिए तो मैं जान दे रहा हूं, लेकिन सामने वाले से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पता कैसे चलेगा कि सामने वाले के लिए मैं जान दे रहा हूं और सामने वाला मेरे लिए जान नहीं दे रहा है? इमाम ने ये नहीं कहा तुम टेस्टर लगाओ, ये नहीं कहा कि उसे बार बार आजमाते रहो, क्योंकि हमारे यहां की आजमाइश भी अजब है।
कभी किसी को चाय के ऊपर आजमा लेते हैं कि साहब देखें हमने इनको चाय पिलाई थी, हम पहुंचेंगे ये भी चाय पिलाएंगे, ये शरबत पिलाएंगे। और इत्तेफाकन अगर सामने वाला बाहर मिल गया और जल्दी में रहा और उसको वहीं दरवाजे साहब यानी आप से मैं माजरत चाहता हूं और बहुत जल्दी में हूं और इंशाअल्लाह मुलाकात बाद में होगी, अब सामने वाला आने वाला सामने वाले की कंडीशन को समझता नहीं है, गौर नहीं करता, क्या करना चाहता है वो यही कहेगा साहब बताइए, ये साहब मेरे यहां डेली चाय पीते हैं और इत्तेफाकन मैं आज इनके घर पहुंच गया, पता चला मौलाना बहुत बदअखलाक हैं। कहा क्यों? कहा साहब वो दरवाजे से ही मुझे क्या कर दिया, वापस कर दिया, रुखसत कर दिया। अब ईमानदारी से बताइए क्या मोहब्बत यही थी? क्या चाय इसीलिए पिलाई थी कि जितनी चाय हमने पिलाई सब मौलाना के गर्दन के ऊपर रहेगी और जितनी चाय मैंने पिलाई इतनी चाय सामने वाला भी पिलाए? क्या यही मेयार है? अरे बोलिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आप मुझे पिलाइएगा, लेकिन कम से कम हाँ ना के जवाब तो दीजिए। इसी तरीके से हम आजमाते कैसे हैं? हम आजमाते ऐसे हैं कि अगर मौलाना को मैंने 4 बार सलाम किया तो अब पलट करके देखे मौलाना 2 बार हमें भी पलट करके सलाम करते हैं या नहीं करते हैं। अब अगर नहीं किया तो साहब कितने वो हैं। इस्लाम तो कहता है जो सामने टकरा जाए उसे पहल करनी चाहिए। इस्लाम का एक फार्मूला तो याद था, दूसरा फार्मूला हम भूल गए कि पहल किसके ऊपर मुस्तहब है, पहले किसके लिए करें। जैसे अगर शागिर्द ये तवक्को रखे डेली तो हम अपने उस्ताद को सलाम करते हैं, अब उस्ताद भी एक दिन तो हमें सलाम करे, आप बताइए कैसा लगेगा। इसी तरीके से रियाया आलिम को सलाम करती है, अब ये उम्मीद में बैठ जाए कि आलिम भी रियाया को सलाम करे। देखिए हर चीज का एक नजरिया है, कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने बहुत बारीकियों से बहुत सारी चीजों के हुकूक बयान किए हैं, लेकिन खतरा कहां पर होता है? वहां पर होता है जब हम ला करके यानी कंपैरिजन में, मुकाबले में और मुआवजे में जब हम कंपेयर करने लगते हैं तब खराबी पैदा हो जाती है कि साहब मैंने मौलाना को 4 बार सलाम किया, इन्होंने तो 1 बार भी सलाम नहीं किया। मैंने तो इनकी दावत 4 बार की, इन्होंने तो 1 बार भी मुझे अपने घर नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं। तो क्या इस तरीके से आजमाना सही है? कहेंगे ये खिलाफ आखला है। बात चीजों में आजमाया नहीं जाता। अगर इसी जगह पर मैं एक बात कह दूं कि साहब जैसे जो शादीशुदा अफराद हैं उनकी बात, कि अगर ये अपने मन में ठान लें कि साहब मैं अपनी ज़ौजा का पूरा खर्चा उठाता हूं, अब ये 1 महीना मेरा भी तो खर्चा उठा करके दिखाएं। आप बताइए क्या ये सवाल सही है? क्यों? कहेंगे साहब ये खिलाफ अक्ल है, क्योंकि कमाने की नाम नफका की जिम्मेदारी उठाने का जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं वो किसे दिए हैं? मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर वाजिब नहीं किया है, इसके जिम्मे नहीं रखा है। अब अगर यहां पर शौहर के साहब हम इतने साल से तुम्हें खिला रहे, क्या 1 महीने तुम नहीं खिला सकती? ये सवाल गलत है। लेकिन अगर आप यही सवाल करिए तो बहुत सारे हामी पैदा हो रहे हैं कि बात तो सही कह रहा है भाई, इतने दिन खिला सकते हैं, क्या वो भी नहीं खिला सकती? तो बाज मवारिद पर, बाज जगह पर सवाल गलत होता है। ये जो हम कयास करते हैं ये कयास गलत होता है। जो हम यानी एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो क्वेश्चन मार्क गलत होता है। जहां पर हम आकर के आजमाते हैं वो आजमाइश गलत होती है। समझ में आ रहा है? अब मालूम लिया मैंने कोई साहब आजमाने लगे मौलाना साहब को कि साहब मौलाना साहब के पीछे तो हम मतलब इतने साल से नमाज पढ़ते आए हैं, क्या वो एक दिन मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते? आप बताइए, अगर कोई साहब ये सवाल पैदा कर दे तो कितने ऐसे होंगे जो तैयार हो जाए, कहें हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, तुमने उनके पीछे नमाज पढ़ी, क्या वो एक दिन तुम्हारे पीछे नमाज
नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर सवाल गलत है, क्योंकि जो जिसका रुतबा है वहां पर उस रुतबे को रहने दो। अब यही चीज आप जाकर के किसी जज के सामने कहिए, साहब हम तुम्हारे सारे फैसले मानते हैं, क्या तुम एक फैसला मेरा नहीं मान सकते? तो वो यही कहेगा, जब मैं जज की कुर्सी पर बैठा हूं तो तुम्हारा फैसला नहीं मानूंगा। ऐसे बात हो सकता है तुम्हारी बात अच्छी हो, कबूल कर सकते हैं। अब कोई साहब जिद कर ले, साहब आप पूरी जिंदगी इतने साल हो गए, 30 साल से आप मुकदमे में फैसले सुनाते रहते हैं, अब आप बैठिए, हम फैसला आपके खिलाफ करते हैं, अब आप बता दीजिए कितने लोग कबूल करेंगे? कहेंगे साहब अगर जज के खिलाफ तुम गए कोई वो करने के लिए तो तुम्हारे ऊपर इतनी दफा लग जाएगी और तुम्हारी सिक्योरिटी जो है वो भी जब्त हो जाएगी, तुम्हारे खिलाफ वारंट निकल जाएगा जहां पर बिल भी नहीं हो पाएगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इसी तरीके से बहुत सारे नजरियात को कहता है कि खबरदार अगर तुमने इताअत को ला करके तकलीद में टकराया, क्योंकि मासूम की इताअत होती है, मासूम की तकलीद नहीं होती। हमारे यहां जो अखबारी पैदा हो गए हैं ये क्या कहते हैं, इन्हें इताअत में और तकलीद में फर्क नहीं पता। ये ला करके साहब इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पूरा जेर सवाल ला देते हैं। अफसोस यही होता है। 2-4 किताबें क्या जान गए, या किसी की सुनी सुनाई मजलिस को क्या रिपीट कर लिया, 2-4 नुकात क्या जान गए, अब बैठ करके अपने को अल्लामा समझते हैं। समझिएगा, अपने को अल्लामा समझते हैं। ना यकीन हो तो बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के मौजूद है। आज ये जो नेट ज्यादा पाया जाता है ना, अनलिमिटेड, इसने बहुतों को हमारे यहां गुमराह कर दिया। क्योंकि इंसान जब फालतू होता है तो दीन के नाम के ऊपर क्या करता है, बस मजलिसें, उसका काम है सुनना कि साहब कुछ ही मजलिसें चला दो, हम सुनते रहेंगे, कुछ सवाब तो मिलता रहेगा। और नतीजा ये रहा कि हो सकता है किसी ऐसे की मजलिसें वो सुनने लगे जिसका खुद का अकीदा खराब हो, जिसका खुद का अमल खराब हो, जिसका खुद का दीन गुलू का दीन पाया जाता हो, जिसका खुद का दीन नुसैरियों का दीन पाया जाता हो। एक मिसाल में दे रहा हूं। अब इसके नजरियात अगर हम सुनने लगे तो हम एक दिन क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। अब बताइए बहकाया किसने? क्या मजलिसों से भी इंसान बहक सकता है? या कुरान से बहक सकता है। जो कुरान हिदायत का दावा देती है, इस कुरान से भी बहक सकता है। और कितने न यकीन हो तो देख लीजिए, जिन्होंने हस्बना किताब अल्लाह का दावा किया था, आज क्या कर रहे हैं? बहके या नहीं बहके? दीन से गफलत बरते या नहीं बरते? बरते। अब अगर इनसे पूछिए अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, कहेंगे नहीं साहब मेरे लिए हस्बना किताब अल्लाह काफी है। इनसे को इताअत करो रसूल की, कहते हैं बस रसूल की जिंदगी तक तो, उसके बाद हम उनकी बातें नहीं मानते क्योंकि वो मर गए और इस दुनिया से चले गए। कुरान कहता है वह उलिल अम्र मिनकुम, कि जो साहिबान अम्र हैं इनकी भी इताअत करो। कहते हैं कौन से साहिबान अम्र? साहिबान अम्र वो होते हैं जिनके हाथ में हुकूमत होती है। अब चाहे वो आलिम हो, चाहे वो फाजिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, अब इनका कहना हमारे ऊपर क्या है? कहा खबरदार, शरीयत को समझने की चीजें हैं, समझने की जरूरत है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम इसी चीज को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अब अगर मैं आपके सामने नतीजा रखना चाहूं कि अगर अल्लाह की इताअत यानी हमारे जहनों में पाई जाती है, हमारे जहनों में पाई जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि साहब हम अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बन जाएं और उसका असर हमारे वजूद में क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। अब अगर ये दिख नहीं रहा है तो क्या इताअत खुदा जैसी अल्लाह ने हमसे मांगा था हम अमल कर रहे हैं?
आप कहेंगे नहीं साहब, जैसे कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। ये कुरान की आयत है सूरह जुमा की। कुरान की आयत सराहतन कह रही है कि साहब आप जब अजान की आवाज सुने तो आप दौड़िए। यहां पर नजरिया ला करके क्या बयान कर दिया जाता है, साहब जुमा हम इमाम मासूम के पीछे पढ़ेंगे, गैर मासूम के पीछे जुमा पढ़ना क्या है, हराम है। हमारे समाज में ऐसे हैं जो अपने को पता नहीं किस नाम से पहचानवाना चाहते हैं और अपनी शनाख्त कराना चाहते हैं। लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, कुरान की सरीही मुखालफत कर रहे नहीं कर रहे हैं। और दलील क्या देते हैं, दलील ये देते हैं कि साहब ये बता दिए ईरान में जुमा कई सौ साल पहले हुआ, इराक में जुमा कब आया, हिंदुस्तान में जुमा कब पढ़ा गया। तो अब जिसकी समझ जितनी रहेगी वो उतनी ही तो बयान करेगा। भाई आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जवाब किसी और मौके दूंगा, टाइम जा रहा है। एक सवाल करना चाहते हैं, जिस हिसाब से शीयत अपने उरूज पर इस दौर में आई है, तुम्हारे अब्बा के दौर में थी, तुम्हारे दादा के दौर में थी, तुम्हारे परदादा के दौर में थी, अब बता दो उनका इस्लाम कौन सा था? गवाही दे सकते हो? नहीं दे सकते। तब आप कहेंगे साहब पहले का दौर शीयत के खिलाफ हम बादशाहत थी, हम हुकूमतें थी, हम फिरका बंदियां थी, तो हम बहुत मुख्तसर से थे, अपना ईमान छिपाए हुए थे, है या नहीं है? मुख्तसर से थे और अपना ईमान छिपाए हुए थे। अब जहां पर ईमान के इजहार पर सजा थी, वहां पर कहिए जुमा क्यों नहीं पढ़ा? सवाल है, जहां पर ईमान अहमियत रखता था या जुमा अहमियत रखता था? अब वहां पर आप सब कटघरे में लाकर के किस चीज को रख रहे हैं? जुमे को। ये सब चीजें समझने की हैं। जाओ इमाम के अदवार को पढ़ो, इमाम के दौरों को। उसके बाद मिसगाइड यही कह के कहते हैं साहब ईरान में जुमा जो हुआ सन 1970 में सबसे पहला जुमा हुआ। मालूम दिया इराक में जुमा जो है खुमैनी साहब के इनकलाब लाने के बाद हुआ। उसके बाद दलील देंगे साहब हिंदुस्तान में जुमा मौलाना दिलदार हुसैन गोफरार माफ के जमाने से शुरू हुआ, तकरीबन 200-250 साल पहले। समझ रहे हैं? और उसके बाद दलील और भी बहुत सारी, मैं इसको वो नहीं करना चाहता। लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, अब अइम्मा की हिस्ट्री उठाइए। तुम कहते हो इमाम के जमाने में जुमा वाजिब था। मेरा सवाल यह है, तुम बता दो मौलाए कायनात को छोड़ करके, इमाम हसन को छोड़ करके, चौथे इमाम के जमाने से लेकर के 11वें इमाम तक किस इमाम ने जुमा पढ़ाया? चौंक जाएंगे ना। अब जब इमाम मासूम हैं तो उन्होंने एक वाजिब को क्यों नहीं पढ़ाया? इसका जवाब वो नहीं है जो आपके जहनों में चल रहा है। इसका जवाब यह है कि हमारे आइम्मा ने शियों की हिफाजत के लिए ईमान की छिपाए रखने का हुक्म दिया। खबरदार हमारे राजों को फाश ना करना, खबरदार अपने ईमान का इजहार ना करना, वरना आप बता दिए जरा सा पता चल जाता था ये शिया है, कितना जुल्म हुआ। अब वहां पर हम तलाशेंगे जुमा कहां कहां हुआ,
हम तलाशेंगे जुमा क्यों नहीं पढ़ाया गया, और उसके बाद कहे सारे मुज्तहिदीन ने अब आकर के हुक्म दिया। मियां, इज्तिहाद का मतलब ही यही होता है कि जहां पर मौके की नजाकत की बुनियाद पर यानी मसाइल का हल पेश किया जाए, और जो आलिम हल पेश करे उसके ऊपर चलना अवाम की जिम्मेदारी है। जाकर के फजीलतें देखो, इस्लाम ने कितनी फजीलतें रखी है जुमे के लिए, ये भूल गए इमाम मासूम? जाकर के देखो पैगंबर के दौर में कितने गैर मासूम लोगों ने जुमा पढ़ाया है। पैगंबर के जमाने में पैगंबर ने भेजा है, फला जगह मसहब तुम जाओ जुमा पढ़ाओ, फला तुम जाओ जुमा पढ़ाओ, फला तुम जाओ जुमा पढ़ाओ, तुम जाओ अपने यहाँ यमन में सना पहुंच जाओ वहां जुमा पढ़ाना, तुम जाओ रोम में वहां जुमा पढ़ाना, जाओ तुम दूसरी मक्के और मदीने में। मदीने में पैगंबर थे, मक्के में कौन था, बसरे में कौन था, इराक में कौन था, दूसरी जगह कौन था? क्या जुमा नहीं हो रहा था? क्या हर जगह मासूम मौजूद था? कहा नहीं। इसका मतलब यह था कि ये सब बचने के लिए एक दलील अपने आप से कायम कर लेते हैं, और ये ताकि उनको जुमा ना पढ़ना पड़े और अपने हिसाब से दीन की तशहीर कर सके। साहब हम अपने मन मुताबिक दीन पढ़ेंगे। तो फिर बता दिए गैबत का फायदा क्या है, इमाम की गैबत का मसला क्या है। इमाम ने यही तो कहा कि जब तुम मुश्किलात में पढ़ो, जाकर के हदीस पढ़ो कि जहां पर यही कहा गया फलिल अवामे अन युक़ल्लिदूहु, कि कंडीशन है कि अगर मन साइनन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने मुतीअन लिअम्रे मौला मुखालिफन लिलहवा फलिल अवामे अन युक़ल्लिदूहु। कंडीशन के साथ कहा इनकी तकलीद करो, लफ्ज़ तकलीद आया है। और उसके बाद कहा क्योंकि हम खुदा की तरफ से हुज्जत हैं तुम पर, और उलमा हुज्जत हैं हमारी तरफ से तुम पर, लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि उलमा की पैरवी करो। इसका मतलब ये सरीही हुक्म इमाम दे रहे हैं, हुक्म आम दे रहा हूं। उलझे हुए साहब इनका कहने ही नहीं मानेंगे, इनका ये नहीं कि इसलिए कि इन्होंने विलायत अली को सही से नहीं समझा है। ये मिंबर पर बैठ करके खाली बयान करने वाले ये विलायत अली को समझे हैं। इनसे पूछो तुम्हारी खिदमात क्या हैं, विलायत अली के लिए तुम्हारे खानदानों ने कुर्बानियां क्या दी हैं? खाली दो चार बलिसे रट लेने से मुदाफे अली बन गए, विलायत हरीम के पासदार बन गए? ये आजकल अखबारियों से जाकर के सवाल कीजिए कि कितना गई है हिफाजत के लिए, रोजात की और मज़ारात की कुर्बानी देने की। इनके आबाउजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी हैं कि जो ये आकर के उलमा को फुकहा को जेर सवालों करते हैं और नाजेबा कलमात कहते हैं, कहते हैं ये तो फला है, तुम्हें किसने अता की दी है कि तुम आलिम को ये कहो कि ये गैर हलाली है, जो कि एक सैयद ज़्यादा हो। जबकि इस्लाम क्या कहता है कि अगर तुमने किसी सैयद की तौहीन की तो तुमने उसकी तौहीन नहीं की, पैगंबर की, आले पैगंबर की, सादात की तौहीन की, और उसकी तौहीन करने वाला एक काफिर ही हो सकता। अब समझिए जाकर के ये जो आकर के फुकहा मुज्तहिदीन और इनको गालियां देते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, इनका खुद का ईमान बचता है या नहीं बचता है? फहबितत आमालुहुम, इनके आमाल हब्त कर लिए जाएंगे, इनके सारी चीजों को इनके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। अब बताओ इनसे इताते खुदा कहां पर है, इताते रसूल कहां पर है, इताते उलिल अम्र कहां पर है? समझ में आ रहा है? जब इसको आप समझ लेंगे तब समझ में आएगा कि फरमाबरदारी हमें कहां पर करनी है, किसके कहने की कितनी लिमिट है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा हमने मान लिया, पैगंबर ने कहा हमने मान लिया, उलिल अम्र ने कहा हमने मान लिया। हमारे नजरों के सामने हमारे इमाम गायब हो गए 329 या 331 हिजरी में। उसके बाद नवाब अरबा का दौर आया, उसके बाद नाइबीन आम का दौर आया, हमने मान लिया। वरना आप बता दीजिए अगर उलमा को बीच से हटा दीजिए तो आपकी पहचान क्या है, आपका वजूद क्या है, आपकी अपनी शनाख्त क्या है, आपकी अपनी दीन क्या है, आपके अंदर मार्फत कितनी है, आपके पास विलायत अली कितनी? अगर उलमा ना होते तो बताया किसने आपको विलायत अली क्या होती है? सलवा पढ़िए सब मिल रखे। बस आखिरी बात नतीजा देना चाहता हूं, ये याद रखिएगा, एतराजात कर लेना बहुत आसान है, एतराजात का जवाब दे देना बहुत आसान है, लेकिन खुद फील्ड में उतर करके, जैसे देखिए पाकिस्तान के कितने ऐसे जो अलिफ से अल्लामा बने हुए हैं,
जिनको कुछ नहीं आता वो कहते हैं इतने 100 मेरे ऊपर FIR है, 2-4 और हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। उनसे पूछो कि किसी को दीन से बेदीन बना देना, किसी को विलायत अली से सही मानों में निकाल देना, किसी को दीन अहले बैत से गुमराह कर देना, ये कितना बड़ा अजाब रखता है। इसके ऊपर तुम्हारी तवज्जो है या नहीं है? किसी को क्यों? इसलिए कि अगर किसी इंसान ने एक इंसान को गुमराह कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को गुमराह किया, और किसी एक इंसान को राह रास्त के ऊपर ले आया तो गोया वो पूरी इंसानियत को राह रास्त के ऊपर ले आया। तो हमें नतीजा देना चाहिए और सोचना समझना चाहिए कि हम मिसगाइड किसको करते हैं और राह रास्त पर किसे लाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा बलागुल लिन्नासि व लियुनज़िरु बिही व लियअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व लियज़्ज़करु उलुल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला मवाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि तौहीद का हमारे ऊपर असर। हुजूर वाला, चूंकि आज 10 ज़ीक़ादा है और जो आज की शब लगेगी, ये शब लगेगी विलादत बसादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत जो होती है वो 10 यानी 11 ज़ीक़ादा सन 148 हिजरी में, और आपकी बहन बीवी मासूमा क़ुम की विलादत होती है 1 ज़ीक़ादा सन 173 हिजरी में। ये बहन और भाइयों की विलादत एक ही महीने में है और 10 दिन के फासले से है, यानी माह ज़ीक़ादा की बात कर रहा हूं, वरना सन का फासला तो ज्यादा है। अब आप जरा सा गौर कीजिए कि ये बहन और भाई ईरान में इन दोनों का रोजा है और दोनों ही ईरान की सरबलंदी का सबब हैं। क़ुम बीवी मासूमा आलम से पहचाना जाता है और इसके बारे में हदीसें यही कहती हैं कि जिसने मारफत के साथ बीवी मासूमा क़ुम की ज़ियारत की वजबत लहुल जन्नह, तो उसके ऊपर जन्नत क्या है? वाजिब। और उसके बाद हदीसें यही कहती हैं कि जन्नत के कई दरवाजे हैं और उन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजा क़ुम की तरफ खुलता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। क्योंकि हम लोग ईरान में रहे और ईरान में तालीम हासिल की, उलूम दीनिया को वहां से पढ़ा हासिल किया। बीवी मासूमा क़ुम ये करीमा अहले बैत हैं। करीमा क्यों किसे कहते हैं? यानी करीमा उसे कहते हैं कि जो अपने अल्ताफ और इनायात को हर वक्त वहां पर रहने वाले खुसूसी तौर पर तलबा के ऊपर, जो स्टूडेंट हैं, जो तालिबे इल्म हैं, उनके ऊपर बनाए रखती हैं। यानी अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती थी तो हम आकर के बेसाख्ता, यानी बीवी की
रोजे पर आने के बाद बेधड़क और बेसाख्ता अपनी हाजत को रख दिया करते थे और वो हाजत हमारी पूरी हो जाती थी। कोई एक हाजत ऐसी नहीं जो बीवी के यहां से पूरी ना हुई हो। ये है करीमा। और ईरान में चूंकि ये बहन और भाई दो ऐसे हैं कि जिनकी वजह से यानी ईरान सर बुलंदियों पर है। एक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जिनका रोजा मशहद में है, जिनका रोजा खुरासान में है, शियत की शान है। इनकी विलादत 11 ज़ीक़ादा को होती है। तो ये जो ईरानी होते हैं ये 10 दिन हफ्ते करामत मनाते हैं। यानी अगर ये कह दिया जाए तो खुशियों का ये 10 दिन ये मनाते हैं अजीम तरीके से। और इसमें वो चीजें मेल मोहब्बत आफ सारी चीजों को ख्याल करते हैं। ईदी लेना, ईदी देना, दावत देना, काम करना, नेमत का बांटना, सारी चीजों को ये 10 दिन हफ्ते करामत में ये शुमार करते हैं और सब कोशिश करते हैं कि ये यानी कहां पर वो हो, 8वें इमाम की ज़ियारत को पहुंचे। हमारी दुआ ये है कि इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम जितने भी यहां पर मौजूद हैं, जितने भी शियाने हैदर करार हैं, इन सब को उद्बात आलियात की ज़ियारत से शरफियात फरमाए। खुसूसी तौर पर हम सबको 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से शरफियात फरमाए। क्यों? इसलिए कि इस इमाम को आलिमे आले मोहम्मद कहा गया है। क्या कहा गया है? आलिमे आले मोहम्मद। आले मोहम्मद में दाना, आले मोहम्मद में समझदार, आले मोहम्मद में इल्म रखने वाला। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां चूंकि हम काश इल्म के कदरदां होते तो कभी गैर आलिम के पीछे ना जाकर के आलिम की कदर करते। लेकिन चूंकि इल्म के ना कदरे हैं, क्योंकि जब नेमत बगैर किसी जहमत के मिल जाती है, जब आसाइशें और असबाब बगैर जहमत के मिल जाए तो उसकी कदर नहीं समझी जाती। मतलब जैसे बेटा, अगर इसको पुश्तैनी दौलत मिल जाए तो इसको उड़ाने में कोई दर्द नहीं होगा, और जब खत्म कर लेगा और उसके बाद जब दर दर की ठोकरें खाएगा तब इसे एहसास होगा कि रुपया कमाना किसे कहते हैं। सही है। चूंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब इस्लामी ईरान की बदौलत इल्म में अहले बैत, उलूम में आले मोहम्मद जिस तरीके से पूरी दुनिया में तेजी से फैला है, गुस्तरिश पाया है, इससे पहले था। उलमा की तादाद कसीर है, कसरत से हैं। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजियां आज हमारे हाथों में है, तो क्या इन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल हमने सही किया? हम तो इसी उसमें उलझे रहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं जितना हमारे पास इल्म है वही बहुत है, जितना हम जानते हैं वही बहुत है। हम तो नाकदरे हो चुके हैं ना। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें एक आलिम की दोस्ती, आलिम के साथ उठना बैठना हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो उलूम आले मोहम्मद का जो आलिम है, हमारा 8वां इमाम, इसने जो ईसाई से मनाजरा किया किस बुनियाद पर किया? क्योंकि लोगों का काम है चढ़ा करके किसी को मुकाबले में ले करके आ जाना। मुकाबले में लाना बहुत आसान है, लेकिन मुकाबले के बाद हक बात को कबूल कर लेना ये बहुत मुश्किल है।
सवाल कीजिए, सवाल करना आपका हक है, लेकिन अगर सवाल का जवाब सही मिल जाए तो उसको मानिए, कबूल कीजिए। अब अगर हर धर्मी पर कोई बाकी है तो इसका मतलब यह है कि मरज जो है वो सीखने वाला नहीं है, यहां पर हसद का मरज पाया जाता है। अब जैसे आलिम ईसाई जिसे मामून लेकर के आया था, यानी 8वें माह से मुनाजरा करने के लिए, जाजीश जिसका नाम था, और आने के बाद वो यही समझता था कि साहब ये इमाम जो आए हैं सादगी जिंदगी से, बिल्कुल कपड़े मुनासिब कपड़े, मामूली से लिबास, मामूली सा रहन सहन, मामूली सा, और वो शायान शान बेहतरीन लिबास पहन करके, फाखरा लिबास पहन करके, बेहतरीन ठाट बाट के साथ आया, और उसके बाद मामून से कहता है कि साहब ये शख्स कौन है? कहा ये शियों के इमाम हैं। तो कहा साहब मैं इनसे मुनाजरा करूंगा, क्योंकि ये तो शियों के इमाम हैं और मैं ठहरा एक ईसाई। इमाम जानते हैं क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं मैं तुझे जवाब तेरी इंजील से दूंगा, लेकिन वो वाली इंजील नहीं जो तेरे पास है, वो वाली इंजील जो ईसा के पास है। मैं ईसा को भी मानता हूं, ईसा इब्न मरियम भी मानता हूं, मैं मरियम पे एतकाद रखता हूं, उनकी किताब इंजील के ऊपर एतकाद रखता हूं। तब ये जजीश कहता है तब तो बहुत अच्छा है, अब मैं सवालात सारे आपसे इंजील से करूंगा। कहा ठीक है इंजील से कर लेना, लेकिन वो वाली इंजील से करना कि जो ईसा के ऊपर नाजिल हुई थी, वो वाली नहीं जो तहरीफ कर दी गई है। अब ये जजीश चौंक गया, कहा कि ये कैसे पता कि जो आपके पास इल्म है वो असली, हमें कैसे पता चलेगा? कहा चूंकि हम आलिमे आले मोहम्मद हैं, हमें जो इल्म मिला है वो पैगंबर से मिला है, पैगंबर को जो इल्म मिला है वो जिब्रील के जरिए आया, जिब्रील जो लेकर के आए थे वो अल्लाह के जरिए लेकर के आए थे, और उन्होंने ही बताया था ईसा इब्न मरियम ये थे, उनके बाद इंजील ये थी, और हमारा अकीदा ये है। अब जजीश कहता है साहब मैं इनसे मुनाजरा नहीं करूंगा। मामून कहता है क्या इसका मतलब हार मान लिया? कहा हाँ बस ऐसे ही समझ लो मैंने हार मान लिया। कहा जिसको हमारी ओरिजिनल इंजील का इल्म हो, मैं ये किताब लेकर के इनसे क्या मुनाजरा करूंगा? यानी इसका मतलब ये था ये गैर था लेकिन हक शनास था, लेकिन वही मामून कलमा पढ़ने वाला था लेकिन हक को पहचानते हुए भी हक शनास नहीं बना, मार्फत हासिल नहीं की। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये हो गया कि आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम यानी उन चीजों के ऊपर अमल करें जो हमें दिया गया है। क्यों? इसलिए कि जब तौहीद को हम उस जगह से हासिल करेंगे जो मंबे आले मोहम्मद है, जो उलूम आले मोहम्मद जहां से नशत पाया है वहां से ले लेंगे तो फिर तौहीद हमें किसी भी से भी मिले। अल हिकमतो सालतुल मोमिन, क्योंकि हिकमत मोमिन का गुमशुदा शय है, इसको अगर कहीं से मिल जाए तो हासिल कर लेना चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि इसका देने वाला मोमिन है या मुनाफिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब।